ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں ڈی وائی ایس پی شیخ عادل بدعنوانی کے الزام کے تحت گرفتار۔ بدھ کے روز نوگام پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے کیا گرفتار۔ ہندواڑہ میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے ورکرز کنونشن کا انعقاد، ہزاروں کارکنوں نے کی شرکت۔ عمر عبداللہ نے ایل جی انتظامیہ پر کی تنقید۔ اور پالپورہ ماگام میں پی ڈی پی کارکنوں کی میٹنگ، پارٹی کو مضبوط بنانے آئندہ بلدیاتی پنچایتی انتخابات کے علاوہ موجودہ حالات پر بھی کیا گیا تبادلہ خیال۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈی وائی ایس پی کی گرفتاری کی۔ مقامی عدالت کے وارنٹ کے بعد جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شیخ عادل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ شیخ عادل کو بدھ کے روز نوگام پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے گرفتار کیا۔ شیخ عادل کے خلاف انسداد بدعنوانی ایکٹ اور تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں دفعہ 193 یعنی جھوٹا ثبوت دینا اور 201 یعنی ثبوت کو تباہ کرنا شامل ہے۔ اس افسر کو حال ہی میں معطل کیا گیا تھا۔ عادل کے خلاف جرائم کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے عہدے کے ایک افسر کے تحت ایک خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس معاملے میں بڑے اثرات کے پیش نظر ایس پی ساؤتھ سٹی کی سربراہی میں اس کیس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس نے جمعرات کو ہندواڑہ میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں ہزاروں کارکنوں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایل جی لیفٹیننٹ گورنر کے حالیہ بیان پر تنقید کی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 80% لوگ انتخابات کے خواہاں نہیں ہیں۔ اپنی تقریر میں عمر عبداللہ نے ریمارکس دیے کہ پہلے دوسرے ممالک کے جھنڈے اٹھانے والے اب شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ بے روزگاری اس وقت بلند سطح پر ہے اور ہر شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے دور میں ایسے مسائل اتنے نمایاں نہیں تھے۔ عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے بعد اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو وہ این سی ہے جس کے کارکن مارے گئے۔ کیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں یہ ان کی بہادری ہے کہ ہمارے پروگراموں میں آ کے ریل اٹھاتے ہیں، باقی اس کے بعد دکھتا کہاں پر ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن بیچارے آ جاتے ہیں۔ ایک لفظ اگر یہ آگے پیچھے لکھتے ہیں اسی دن شام کو ان کا فون بجتا ہے، فلانے تھانے میں آ کے حاضری دو۔ کچھوں نے تو اپنے قلم ہی نیچے رکھے ہیں۔ میں کن کن کے نام لوں جو ہمارے دور میں بڑی بہادری سے لکھتے تھے، کھلم کھلا۔ اخبار کے اگر 10 پیج ہوتے تھے تو 9 پیجوں پہ ہماری مخالفت ہوتی تھی، 10ویں پیج پہ تھوڑا پیسہ کمانے کے لیے وہ اشتہار لگاتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ اگر 10 پیج ہے، 8 پہ اشتہار ہوں گے، 1.5 پیج پہ گورنر صاحب کی تعریف ہوگی، آدھے پیج پہ اگر ان کا موڈ بنا تو کہیں ہمارا ذکر ہوگا، نہیں تو کبھی وہ بھی نہیں۔ ادھر پی ڈی پی نے پالپورہ ماگام میں اپنے کارکنوں کی میٹنگ کا اہتمام کیا۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہندواڑہ نے پالپورہ ماگام میں ورکرز میٹنگ کا انعقاد کیا، جس کی صدارت حلقہ انتخاب ہندواڑہ صوفی عرفان محدین نے کی۔ اس موقع پر ضلع صدر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کپواڑہ ایڈوکیٹ ابو مجید بھی اس ورکرز میٹنگ میں زونل صدر اور پوری زون باڈی کے ساتھ موجود تھے۔ کارکنوں کی میٹنگ کے دوران پارٹی کو مضبوط بنانے اور آئندہ بلدیاتی انتخابات، پنچایتی انتخابات کے علاوہ موجودہ حالات پر بھی اس میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
लोगों का रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है। जो सूफी साहब का एक कैडर था वो बहुत दिनों से खामोश था। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके पास जाए और उनको एक्टिवेट करें, और इंशाल्लाह रहमान सब कुछ ठीक चल रहा है। हम अच्छे से काम कर रहे हैं और वर्कर्स का भी रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है। ग्राउंड लेवल पे वो भी काम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि आगे पार्टी और मजबूत होने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि चूँकि 2019 के बाद पार्टी में थोड़ी सी खलबल हुई थी, तो इंशाल्लाह रहमान वो हम कूप कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आने वाले दिनों में कुछ जॉइनिंग्स भी होने जा रही है, और कुछ पुराने वर्कर्स जो साइलेंट है वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह रहमान एक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी कायद जो है वो एक नेक इंसान है, एक बहादुर लीडर है, और उनके पीछे जो ये कारवां है वो भी बहादुर लोग ही है। ये बहादुरों का काम है एक बहादुर लीडर के पीछे चलना। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का, और जो हमारे नॉर्थ कश्मीर के जितने भी लीडर्स हैं या सेंटर में भी हमारे लीडर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने देखा कि कुछ अरसे से अब बल्दियाती इलेक्शन हो या पंचायती इलेक्शन हो या उसके आगे फिर जो हमें उम्मीद नज़र कुछ आ रही है कि असम्बली इलेक्शंस होंगे, तो उस सिलसिले में अभी एक किस्म का मिशन इलेक्शन शुरू हुआ है। पार्टी की तरफ से जो हिदायत मिली है उस वजह से हमने अब अपने लोगों के साथ, और जो आम लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उनके पास हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें हम अपनी पार्टी का मौक़िफ़, अपने लीडर की हिदायत और अपने लीडर के जो पार्टी के जो हमारे ये हैं प्रोग्राम्स हैं और मंशूर जो पार्टी का है वो लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं, और उन्हें हम अब इस बात से भी आगाह कर रहे हैं कि सही मानों में जो लोगों ने देखा है, क्योंकि अब की दुनिया अब वो पुराने वक़्त की नहीं रही, अब ग्लोबल विलेज है, लोग हर एक चीज़ को देखते हैं और विद इन मिनट्स हर एक जगह की रीच है उन्हें, तो वो खुद भी देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम उन तक अपनी ड्यूटी समझ के अपने पार्टी के प्रोग्राम को पहुँचाकर उन्हें। और आइए अब रुख करते हैं जम्मू का। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्युत परिषद के यौम तासीब की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने हाज़रीन से इस मौके पर खिताब किया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान को हमेशा एक ज़िंदा रहनुमा और एक मुतहर्रिक तवानाई के मैदान के तौर पर समझा जाता रहा है, जिसने एक दुनिया, एक ख़ानदान और तमाम मज़ाहिब, फ़िरक़ों और रूहानी सिलसिलों का एहतराम करने का विज़न दिया है। इंसानियत, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और अमन के नज़रियात हमारी क़दीम अक़दार का बुनियादी हिस्सा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि दुनिया की फ़लाह हमारे बाबाओं, औलिया और इरफान का अव्वलीन मकसद था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के ज़मीर को बेदार करने, समाजी इस्लाहात को फ़रोग़ देने, रियाज़ी, केमिस्ट्री, तिब, अदब और फ़नून में इल्म का ख़जाना फ़राहम किया और दुनिया को मालामाल किया। LG मनोज सिन्हा ने मज़ीद कहा कि संस्कृत नज़रियात का माखिज़ है, हमारी अजीम तहज़ीब की अक़दार और इसमें जदीद दौर के चैलेंजों का हल फ़राहम करने की सलाहियत है, जैसे कि अथर्वेद की माहौलियाती तवाज़ुन, माहौल की हिफाजत, फ़ितरत के साथ हम आहंगी में रहना। परिषद को इन कोशिशों को मजबूत करना चाहिए। अमृतकाल हिंदुस्तान की सकाफ़ती सानिया का दौर है। पूरी दुनिया हमें देख रही है। हर शहरी को इस सफ़र का हिस्सा बनने पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए और हमें से हर एक को अपना इसमें हिस्सा डालने का यकसा मौका है, ताकि हमारा अजीम मुल्क विश्व गुरु की अपनी पुरानी शान को दोबारा हासिल कर सके। तो उस समय जो पश्चिमी देश हैं, एक तरह से अगर आप दुनिया का इतिहास पढ़ेंगे तो वो स्टोन एज में जी रहे थे। वहां उस समय तक सामाजिक सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, लेकिन भारत उस समय तपोभूमि बन चुका था। आज भी यह भारतवर्ष ग्लोबल मैप पर मात्र एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है, जिसने हजारों वर्ष से स्वयं को मिटाने की, विश्व कल्याण की, अस्तित्व के साथ एक होने की, समाज की चेतना में नए प्राण जगाने की, अंतरात्मा की खोज की प्रेरणा पूरी मानवता को दी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष 30 जुलाई को प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी की अध्यक्षता में
जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्वत परिषद। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अपनी गलतियों को तस्लीम करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से फरवरी सन 2019 में कश्मीर में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हुई। साबिक गवर्नर ने मजीद कहा कि वो पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा करते हैं, जिसमें हमारे 40 फौजी शहीद हुए थे। अब तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने इस सानहे पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और संगीन गलतियों को तस्लीम करने से कासिर है। ये है कि जिस दिन ये दुर्घटना हुई मुझे दोपहर में मालूम हुआ। मैं उसमें बहुत यकीन था, बहुत प्रेरित था और मुझसे जिस चैनल ने भी मांगा मैंने उसको कहा कि ये हमारी भूल से, हमारी गलती से हुआ। और हमारी गलती क्या थी? 4 महीने से सीआरपीएफ की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी होम मिनिस्ट्री में जहाज़ देने के लिए। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो जब स्टूडेंट्स फंस जाते थे सर्दियों में उनकी एयरलिफ्टिंग कराता था। दिल्ली के एयरपोर्ट से किराए पे मिल जाते हैं जहाज़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 महीने पेंडिंग रखने के बाद उनको ब्लैंकेट मना कर दिया गया और फिर वो सड़क के रास्ते से चले। सड़क का रास्ता अनमैन्ड। वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले के कमरिया पार्क में नामालूम नौजवान के धागे कटर के हमले में एक नौजवान लड़का ज़ख्मी हो गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान हाथापाई हुई, जिसमें एक नामालूम नौजवान ने दूसरे नौजवान पर धागे के कटर से हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया। थाना गांदरबल की पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई है और धागा कटर बरामद कर लिया गया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली गई है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। उनका मज़ीद कहना था कि पुलिस मुलजिम को पकड़ने के लिए काम कर रही है। वादी भर में मौसमियाती तब्दीली की वजह से किसानों के साथ साथ आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से जहां नदी नाले सूख गए हैं, वहीं दरियाए झेलम में भी पानी की सतह में बेतहाशा कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आम लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। पेश तफसीलात। रवां साल वादी भर में मौसमियाती तब्दीली की वजह से कई माह तक खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसका असर यहाँ के मेवाजात के साथ साथ दूसरी फसलों पर भी देखने को मिला। रवां साल बारिशें कम होने की वजह से भी पानी की सतह में कमी देखने को मिली। वहीं बारिशें कम होने की वजह से मेवाजात पर भी बुरे असरात मुरतब हो चुके हैं। अब अगरचे कुछ हफ्तों के बाद मेवाजात उतारने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, ताहम बारिशें न होने और दर्जे हरारत में इजाफा होने की वजह से मेवाजात पूरी तरह से पक नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम दूसरी जानिब देखें तो वादी भर की अक्सर इरिगेशन स्कीमें कई माह से नाकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से किसानों को आबपाशी के लिए पानी की सहूलत मैसर ही नहीं। इस ज़िम्मे में हमने किसानों के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से बात की। स्कीम्स बने हैं, उस वक्त लेवल ऊपर थी। जब इन्होंने यहाँ से रेत उठाया लेवल नीचे गई। इससे हम इरिगेशन वालों के भी मुश्किलात सामने आ गए। इस सिलसिले में किसानों ने बात करते हुए कहा कि इमसाल फसल काफ़ी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि आबपाशी के लिए पानी मैसर न होने से मेवाजात पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं, जबकि मेवाजात का साइज़ और रंग अभी तक नहीं मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा कि इमसाल भी हमें फसल से नुकसान का ही सामना करना पड़ सकता है। खुशक साली गई काफ़ी, नदी नाल नाग आब चुन कुनी खुशक साली गई, सानन बागातन रुद न आब मैसर वक्तस पे कह, यम किन कुलियन वारिया ज़्यादा नुकसान सपद्यो। इस ज़िम्मे में महकमे बागबानी के ज़िला अफसर जावेद अहमद ने बात करते हुए कहा कि दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा और बारिशें कम होने की वजह से फसल पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, जबकि कई इलाकों में सनबर्न जैसी बीमारी भी मेवाजात में लगी है, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है।
ड्राई स्पेल से हमारे पैडी को कोई ख़ास नुकसान होने वाला नहीं है। अलबत्ता अगर ये ड्राई स्पेल कंटिन्यू रहता है तो सब्ज़ियां जो हमारी हैं इसमें अगर इरिगेशन की कमी रहती है तो इसमें हमारी सब्जियों को नुकसान। इस ज़िम्न महकमे ज़राअत के ज़िला अफसर जावेद अहमद ने बात करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, ताहम इसका धान पर कोई असर नहीं होगा, जबकि सब्जियों पर इसके असरात मुरतब होंगे अगर बारिश या फिर आबपाशी के लिए किसानों को पानी मैसर ना हो। क्रॉप था कम्पिटिटिव, अगर आप देखेंगे कि रेट भी अच्छा था मार्केट में, तो बहुत सारे ऑर्चार्ड्स में खासकर जो हमारे अपलैंड्स है वुडर्स जिनको कहते हैं, वहाँ क्रॉप को जो है सनबर्न से शुरू हो गए हैं, जिससे थोड़ा सा एक दक्चा लग सकता है। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। मानसबल गार्डन में मानसबल ड्रामेटिक्स और सकाफती यूनिट PDR के ताउन से जश्न मानसबल मुनक़िद हुआ। श्री DC गांदरबल श्यामबीर गर्ल्स हाई मेहमान खुसूसी थे। गर्ल्स हाई स्कूल सफ़ापुरा और एजेंस केयर स्कूल सफ़ापुरा की तालिबात ने इस्तक़बालिया गीत और कौमी तराना पेश किया। मारूफ गुलकारा हसीना अख्तर एंड पार्टी सोहेल फैयाज शिलोती एंड पार्टी ने लोकगीत पेश किए, जिन्हें मकामी लोगों और ज़ायरीन ने बेहद सराहा। मिस्टर सोहेल नबी खान ने तारीख़ी पहलुओं पर अपना मकाला पढ़ा। मानसबल ड्रामेटिक्स ने मज़कूरा प्रोग्राम में 2 मुख्तसर ड्रामे पेश किए। मज़कूरा अज़ीमुश्शान तकरीब में मुख्तलिफ़ सकाफ़ती प्रोग्राम पेश की गई। मारूफ ड्रामा राइटर जनाब निसार नसीम ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। श्री श्यामबीर DC गांदरबल ने इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा कि मानसबल और ज़िले के दीगर सियाहती मकामात को मशहूर किया जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि सयाहों की बड़ी तादाद को ज़िले की तरफ राग़िब किया जाए। मज़ीद उन्होंने कहा कि मानसबल को सियाहती मकाम के तौर पर तरक्की देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पहले सोशल कंसर्न ग्रुप के कुछ लोगों ने अभी अपनी बात रखी, यहाँ पर बाकी भी लोगों ने अपनी बात रखी, तो सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कल जब हमारे यहाँ ऑनरेबल LG साहब का प्रोग्राम था जिला गांदरबल के अंदर, उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि हमारा गांदरबल जो है वो ग्लोबल डेस्टिनेशन बन रहा है। तो गांदरबल को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए हमारे यहाँ पे चाहे वो सोनमर्ग हो, चाहे वो मानसबल हो, चाहे वो नारानाग हो, या जितने भी टूरिस्ट विलेजेस हैं वो उन सबका बहुत अहम योगदान रहा है। मानसबल भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी जगह है और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये जगह खासकर बहुत पसंद भी है, तो इसके बारे में वो बार बार हमारा रिव्यू भी लेते रहते हैं और हम लोगों ने भी इसकी पूरी एक कार्य योजना बनाई है। और इससे पहले मेरे से पहले सोशल कंसर्न ग्रुप के कुछ लोगों ने अभी अपनी बात रखी यहाँ पर, बाकी पश्मीना बुनाई का काम अगरचे जम्मू कश्मीर की पुरानी दस्तकारी में शामिल है और ज़्यादातर लोग अब इस दस्तकारी को तरजीह नहीं दे रहे थे, ताहम सरकार की कोशिशों से अब ये दस्तकारी दोबारा फ़रोग़ पाने लगी है। इंतज़ामिया की जानिब से पश्मीना बुनाई के साथ वाबस्ता दस्तकारों को तरह तरह की मदद फराहम कर रहा है, जिससे इन दस्तकारों को खासा मुनाफा हासिल हो रहा है। नौजवानों को रोज़गार के मामले में बाख्तियार बनाने के लिए हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमा अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और ज़िले पुलवामा में मुतल्लिका महकमा नौजवान लड़कों और लड़कियों को बरसरे रोज़गार बनाने के लिए एक पहल के तहत क्रेडिट कार्ड स्कीम के ज़रिए लोन फराहम कर रहा है, जिससे ज़िले के सैकड़ों नौजवान इस्तिफ़ादा हासिल करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर कई लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा कर रहे हैं। ज़िले पुलवामा के कुछ दस्तकारों का कहना है कि उन्हें अब सरकार की जानिब से माली मुआवनत की जा रही है, जिसकी वजह से वो अपने पश्मीना के लूम शुरू कर रहे हैं और उन्हें इस काम को करने में ज़ाती खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमा क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन फराहम कर रहा है, जिसकी वजह से इन दस्तकारों को अपने यूनिट शुरू करने में काफ़ी आसानी महसूस हो रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम पुलवामा मोहम्मद यासीन ने कहा कि वो नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के मामले में खुद कफील बनाने के लिए नौजवानों को ट्रेनिंग के अलावा क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़िले के बेरोज़गार नौजवान छोटे छोटे यूनिट्स लगाने के काबिल बन रहे हैं और वो इस स्कीम के ज़रिए न सिर्फ अपने लिए बल्कि और लोगों के लिए भी रोज़गार के वसाइल पैदा कर रहे हैं। मोहम्मद यासीन ने कहा कि मुस्तकबिल में भी मुताल्लिका महकमा नौजवानों को तरबियत फराहम करता रहेगा ताकि ये नौजवान बेरोज़गार न रहें बल्कि रोज़गार फराहम करने वाले बन जाएं।
कि बच्चियाँ जो हमारे घरों में बैठे हैं, मतलब पढ़ी लिखी है, अभी इनका कोई रोज़गार का वसीला नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि ये इस हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से ज़्यादा वाबस्ता हो जाए ताकि इनकी ये बेरोज़गारी दूर हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि यहाँ पुलवामा में बहुत ही दौड़ धूप हमने की है, तो आज मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तादाद लड़कियों की ज़्यादा पर जो इन हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम क्राफ्ट से वाबस्ता हो गई और इनकी अच्छी एक कमाई हो रही है। मे नाव रोजी जान गए हैंडलूम दफ्तर तक ट्रेनिंग क्या कम चीज़ लगान अथ काम मज तम चीज़ अन पे कोर मुद्रा स्कीम पे लोन पे अन कोर 5-6 तम हेचनाय तम कर बे अमुक सामान क्या क्या लगान तह कोर सोरे बेस गरकन पे डिपेंड वन ना गरकन पे मलिस माज पे डिपेंड वन योरे दिवान मलिस माज रपे दह योरे कर गरकन मदद बेस पन पान क्या पकनावान। क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों को, खासकर लड़कियों को 2 लाख का कर्जा दिया जाता है, जिससे ये नौजवान पश्मीना बुनाई के लूम लगाकर रोजगार कमाने के अहल बन रहे हैं। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के DYSP शेख आदिल बदउनवानी के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार। बुध के रोज नौगाम पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने किया गिरफ्तार। हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। हजारों कारकुनों ने की शिरकत। उमर अब्दुल्लाह ने LG इंतजामिया पर की तनकीद। और पालपोरा गांव में PDP कारकुनों की मीटिंग। पार्टी को मजबूत बनाने आइंदा बल्दियाती पंचायती इंतखाबात के अलावा मौजूदा हालात पर भी किया गया तबादला ख्याल। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।